Hi guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood. Now before we start today's episode, here's wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi, and here's hoping that the Lord blesses us with a lot of peace, a lot of happiness, a lot of success, and most importantly, good health. Well, we have a great show lined up for you guys with some very interesting facts and tidbits from the world of Bollywood and social media. But before we kickstart today's show, here's reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates through the weekend about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Take a look. Saif Ali Khan opens up about online trolling. Famous Bollywood items that were auctioned. Ananya Pandey opens up on being body shamed. And as far as trolling goes, I'm not really bothered. I always feel it's far more interesting to meet somebody who has two nice things to say versus jump in your face and take a selfie without even having to ask you for your permission. I miss that, even That's autographs were more personal. I think that touch is a little lost. सैफ अली खान और अर्जुन कपूर ने कही अपने दिल की बात। कैसे डील करते हैं दोनों सोशल मीडिया ट्रोलिंग से? क्या मल्टी स्टारर फिल्मों में इनसिक्योर हो जाते हैं अर्जुन कपूर? सेल्फी लेने वाले फैंस और पापराची के बारे में क्या सोचते हैं अर्जुन और सैफ? जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस खास स्टोरी के साथ। अपनी फिल्म भूत पुलिस को प्रमोट करते हुए सैफ अली खान और अर्जुन कपूर ने फिल्मों से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बढ़ते हुए पैप कल्चर जैसी टॉपिक्स पर अपने अनबायस्ड व्यूज दिए। साथ ही शेयर किए एक दूसरे के साथ पहली बार काम करने का एक्सपीरियंस। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। सैफ अली खान ने पिछले कुछ सालों में अपने काम और स्क्रिप्ट चॉइसेस के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन जहां उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए मिला है फैंस का प्यार, वहीं वो कई बार कंट्रोवर्सीज और मास ट्रोलिंग का शिकार भी बने हुए हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सैफ ने बताया वो सोशल मीडिया पर की जाने वाली ट्रोलिंग को कैसे संभालते हैं और ऐसे क्रिटिसिज्म का उन पर क्या इंपैक्ट होता है। सैफ का कहना है कि ही चूजेस नॉट टू रिएक्ट और वो हेट कमेंट्स के बारे में सोचने से ज्यादा ऑडियंस से मिल रहे प्यार और अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचना ज्यादा पसंद करेंगे। And as far as trolling goes, I'm not really bothered. You don't react to that. You say, "Oh, I'm in the Maldives with beautiful children, a beautiful wife, having a lovely glass of wine. Should I really care what a troll has to say about me?" And the answer is usually no. फिल्म भूत पुलिस में सैफ के साथ अर्जुन कपूर भी नजर आएंगे एंड लाइकवाइज ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी मल्टी स्टारर फिल्म्स, लेकिन इस बात से वो कभी इनसिक्योर नहीं हुए। अर्जुन का कहना है कि एज एन एक्टर अगर आपने फिल्म साइन करते वक्त ही अपने कैरेक्टर की जिम्मेदारी और लिमिटेशंस को समझ लिया है तो फिर अपने को स्टार्स को मिले ज्यादा लाइंस या स्क्रीन स्पेस या डायलॉग्स को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है। I think I'm slightly fortunate in that sense. I've done a lot of ensembles. Even before coming into Bhoot Police, I did Aurangzeb as my second film, Gunde, where I got Ranveer as my co-star, Finding Fanny, and you talk about not doing Bhoot Police. I've had Mubaraka for that matter. So I've had some kind of taste. Even 2 states had an ensemble. I've had that taste, and I've realized that it depends on how you look at work. I can get insecure about him being really funny on set also, but if I forget the script and I say, Saif is making everybody laugh, what am I doing in this scene? And I go and tell the director, hey, give me at least one funny line. Na? But my character is not that. When I signed on, sitting in the AC room, when I heard a narration, I committed to the fact that I am the straight-faced, honest, real character. He's the guy with the wit. And mine is more the reactor that, oh God, we're in trouble, this guy's going to... Like, what do you do? I have to, I am the audience in that sense. I'm reacting to the sheer charade that Vibhuti puts up. I can't on set be saying, no, now I want 2 lines as funny, otherwise I'm not going to do the show. So you need to know why you do films. You need to know what your role is. You need to do it well. And of course, if you're not somebody who has that bandwidth, then you shouldn't do these films.
Yeah. I think it's very important to know, and sometimes conflict is good, but then the script needs it in itself for you to have that friction and be okay. Yeah. If you're going to be playing off each other, you can't be showing up on set asking about ये line वो क्यों बोल रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका वो shot extra क्यों लिया, इसका ये क्यों अलग से ले रहे हो, oh he's got an extra song, अच्छा he's, then you're going to just caught up in all the wrong things and you're not making the film better. You're just trying to protect yourself. Yeah. And if that was the intent, then you shouldn't have signed the film, because you cannot protect yourself in an ensemble with all this. You can only protect it with what you do on set. Talking about dealing with the paparazzi, Saif और अर्जुन का कहना है that although they have gotten used to it, but they still want their privacy to be respected. India I think was that- lovely, it would be so much more lovely for me if we got less attention and we could just walk around Elephanta caves or so many things we can't do, and we need to go sadly abroad or somewhere if you want that anonymity. Yeah. Because, and I love it, I wouldn't give it up. I respect and appreciate the attention that people give, but sometimes it's a double-edged thing, because I mean, going to the Taj Mahal or something are things that you really can't do. I mean, he can't go there with whoever he But you wants. still I love the fact that people appreciate my work and they know me, and I that's what this profession gives you, and I've grown up around it. At the same time, I always feel it's far more interesting to meet somebody who has two nice things to say versus jump in your face and take a selfie without even having to ask you for your I permission. miss that, even That's it. autographs were more personal. I think that touch is a little lost in this digital situation where people are, and also why hide and shoot, and it's just stuff like that where you just feel, listen, you like my work, I'm very happy about that. We'll have a chat. Not even a chat, it's like, at least if you want to take a photo, at least ask me. I always appreciate how are you? How are you? Yeah, How are you exactly. doing? How are you doing? Yeah. That's fine. So Even the- though there are some who started climbing the building opposite us and shooting our ladies that's a bit when they off. get together. Yeah, the siestas. That should not happen. भूत पुलिस में सैफ अली खान और अर्जुन कपूर गोस्ट बस्टर्स, विभूति और चिरौंजी के किरदार में नजर आएंगे और फिल्म में उनका साथ देंगे जैकलीन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जाफरी। हम आशा करेंगे कि इस फिल्म को मिलेगा फैंस का बहुत बहुत प्यार। सलमान खान के टावल के लिए लगी लाखों की बोली। मुझसे शादी करोगी के मशहूर गाने में इस्तेमाल हुए टावल का हुआ ऑक्शन। सलमान के फैन ने चुकाई बड़ी कीमत। बॉलीवुड में इस तरह के ऑक्शंस का ट्रेंड है पुराना। कभी माधुरी का लहंगा तो कभी आमिर का क्रिकेट बैट फ्रॉम लगान। बॉलीवुड सेलेब्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स की एक झलक पाने के लिए कभी एयरपोर्ट तो कभी उनके शूटिंग सेट तो कभी उनके घर के बाहर घंटों तक इंतजार करते हैं। And when they get a chance to keep something that belongs to their favorite star, that's possibly their most prized possession. आज की स्टोरी में आपको बताएंगे कि किन बॉलीवुड स्टार्स की कौन सी चीज हुई है ऑक्शन और क्या कीमत लगाई उनके चाहने वालों ने। टेक अ लुक। कहते हैं मुंबई शहर और बॉलीवुड में जो चाहो वो एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाता है। फिर भले ही वो कोई ड्रीम फिल्म प्रोजेक्ट हो या फिर अपने फेवरेट फिल्म सेलेब का टावल हो या फिर लहंगा। हम बात कर रहे हैं उन चैरिटी ऑक्शंस की जिनमें बॉलीवुड एक्टर्स के पॉपुलर फिल्मों में यूज किए गए कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स की लगाई जाती है बोली, और इन एक्टिविटी से मिले हुए पैसे एनजीओज या फिर चैरिटेबल कॉजेज में यूज किए जाते हैं। इस लिस्ट में भी सबसे पहला नाम है मेगा स्टार सलमान खान का। एक ऑक्शन इवेंट में उनके टावल के लिए रिपोर्टेडली 1,42,000 की बोली लगाई गई थी एंड इट वाज सोल्ड टू वन ऑफ सलमान्स फैंस। ये वही टावल है जो उन्होंने फिल्म मुझसे शादी करोगी के पॉपुलर गाने जीने के हैं 4 दिन के आइकॉनिक स्टेप को करते हुए यूज किया था। सलमान के टावल ने जब बाजी मार ली तो आमिर खान के बल्ले ने भी दिखाया कमाल। फिल्म लगान में भुवन ने जिस बल्ले से छक्का लगाकर कैप्टन रसल का घमंड तोड़ दिया था, उसी बैट ने ऑक्शन में भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए when it was sold for 1,56,000 rupees। और जब बात रिकॉर्ड तोड़ने की हो तो बादशाह खान, शाहरुख कैसे पीछे रह जाते।
रिपोर्टेडली शाहरुख के एक फैन ने उनके लिए एक डूडल बेस्ड आर्टवर्क बनाया था which was autographed by शाहरुख खान himself. जब इस आर्टवर्क को ऑक्शन किया गया था तो उसे 2 लाख रुपीस में खरीद लिया गया था। इस रेस में धक धक गर्ल माधुरी सबसे आगे निकल गई। जब फिल्म देवदास में उनका पहना हुआ डिजाइनर लहंगा was put up for auction and was sold for a whopping ₹3 crores. जी हां, पूरे 3 करोड़ लगाई गई उस खूबसूरत लिबास की कीमत। इसी तरह बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय ने भी कई बार फिल्मों में पहने अपने कॉस्ट्यूम्स ऑक्शन किए हैं टू रेज मनी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। फिल्म OMG में उनका पहना हुआ आइकॉनिक सूट एक रिटेल साइट पर 15 लाख रुपीस में बिका एंड द मनी वाज रेज्ड फॉर एन एजुकेशनल कॉज। ऐसे किस्से तो कई हैं, लेकिन इससे एक बात तो क्लियर है कि बॉलीवुड स्टार्स जब भी अपने स्टारडम का सही इस्तेमाल करें किसी और की मदद करने के लिए, तो बी टाउन स्टार्स और उनके लॉयल फैंस कभी पीछे नहीं हटते। एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि ये प्यार हमेशा बना रहे। बॉलीवुड सेलेब्स कई बार हुए हैं बॉडी शेमिंग का शिकार। फराह खान, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर अनन्या पांडे भी की गई हैं ट्रोल। कभी बढ़ते हुए वजन का उड़ाया गया मजाक, तो कभी अंडरवेट होने पर किए गए हैं कमेंट्स। कैसे दिया इन सेलेब्स ने बॉडी शेमिंग का करारा जवाब, जानिए इस स्टोरी के साथ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जहां ढेर सारा प्यार और पॉपुलैरिटी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने लुक्स, बॉडी टाइप और फैशन चॉइसेस के लिए हर रोज जज किया जाता है। Apart from that, they're always under pressure to stay in perfect shape. And if they don't manage to meet their fitness goals, our stars are brutally trolled. लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज कभी खामोशी से तो कभी अपने अलग अंदाज से ऐसी बातों का जवाब भी देना जानते हैं। आज की इस स्टोरी को देखने के बाद आपको मिलेंगे some important tips on how to handle body shaming. Take a look. सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के बाद बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। अब फैंस ना सिर्फ अपने फेवरेट स्टार्स की डेली अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं, पर कमेंट सेक्शन में सीधे उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये आजादी कई बार ट्रोलिंग और नेगेटिव क्रिटिसिज्म में बदलती जाती है, जहां स्टार्स की प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तक के लिए भी उन्हें जज और ट्रोल किया जाता है। बट विद टाइम, सम ऑफ आवर सेलेब्स हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ गिविंग इट बैक इन स्टाइल। अरबाज खान के चैट शो में जब उन्होंने फराह खान को एक नेटिजन के कमेंट को पढ़कर सुनाया विच स्टेटेड, मोटी के बच्चे इतने सूखे क्यों, टू विच फराह खान रिस्पॉन्डेड विद, सुन, तू तेरे बच्चों को संभाल, मैं मेरे बच्चों को संभाल लूंगी। बात अगर खूबसूरती की करें तो मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन तक को पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन के लिए ट्रोल किया जा रहा था। एक इंटरव्यू में इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो ये बात समझ नहीं पा रही कि लोगों के पास किसी दूसरे को नीचा दिखाने का वक्त आता कहां से है, एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज अवॉइड सच पीपल। अर्जुन कपूर, who once weighed around 100 kilos, उनका भी कुछ मानना यही है कि अगर कोई बात उनके ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो उसे हर बार सीरियसली नहीं ले सकते। अर्जुन कपूर की ही तरह सोनाक्षी सिन्हा को भी उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही ओवरवेट होने को लेकर बचपन से ही बॉडी शेम और बुली किया गया है। बट विद टाइम शी हैड लर्न्ड दैट उन्हें हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, एज शी इज डेफिनेटली बिगर देन देम। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रोलिंग सिर्फ उन्हीं सेलेब्स की गई जो ओवरवेट थे या हो गए थे। अनन्या पांडे को भी बॉडी टाइप और पर्सनालिटी को लेकर कई बार ट्रोल किया गया है। Opening about the same in a recent interview, she said, "People used to say I look like a boy, flat screen." अनन्या पांडे का कहना है कि उस वक्त उन्हें इन बातों का बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि वो उस वक्त अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो खुद से प्यार करना और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख लेंगी, तो फिर कोई भी बात उन्हें हर्ट नहीं कर पाएगी। और वक्त के साथ वो इसी सोच की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं।
I can't change the way my body is, and I don't think body shaming in any way is okay, because you don't know the struggles that person is going through. Like, people go through a lot, and I think especially young girls and young women and young teenagers in general, we're just trying to figure ourselves out. We have so many things going on. We are already insecure about the way that we look, so I don't think you saying something makes makes the situation better in any way. So I don't think fat shaming, skinny shaming, body shaming in any way is okay at all. Well, we hope that our viewers would also take few tips from these Bollywood celebs, and together we can normalize and start accepting people with different body types. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Stay tuned. बॉलीवुड सितारों को अपने फैंस है बेहद पसंद। कभी तस्वीर लेकर तो कभी गले लगाकर किया सरप्राइज अपने चाहने वालों को। पापरात्सी के कैमरे में कैद हुए हैं ऐसे ही खूबसूरत लम्हे। सलमान खान, रणबीर कपूर से लेकर कार्तिक आर्यन के कुछ स्वीट जेस्चर्स विद लव एंड केयर आज की खास स्टोरी में आपके साथ करेंगे शेयर। बॉलीवुड स्टार्स हमेशा पापरात्सी और अपने बॉडीगार्ड से घिरे हुए नजर आते हैं, लेकिन अपने फैंस के प्यार और दीवानगी के आगे वो भी कई बार पिघल ही जाते हैं। और जब कभी ये प्यार लौटाने का मौका मिलता है तो हमारे स्टार्स पीछे नहीं हटते। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे ही खास मोमेंट्स जिन्हें देखते ही आपको अपने फेवरेट स्टार्स से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। टेक अ लुक। बॉलीवुड स्टार्स की फैन फॉलोइंग मुंबई से लेकर पूरी दुनिया में है और चाहने वाले अपने फेवरेट स्टार्स को देखने और उनसे एक बार मिलने के लिए सभी तरीके आजमाते हैं। पर कभी स्टार्स भी दे देते हैं अपने फैंस को खूबसूरत सरप्राइज विद अ स्वीट जेस्चर। और जब बात दिल रखने की हो तो इट्स ऑब्वियस कि पहला नाम दिलदार सलमान खान का ही है। पिछले साल वायरल हुए एक क्यूट वीडियो में सलमान अपने लिटिल फैन के साथ नजर आ रहे हैं एंड ही कुडंट जस्ट लेट हर गो एंड सलमान का ये स्वीट जेस्चर उनके चाहने वालों को बहुत पसंद आया। बिग बॉस 13 के फिनाले के वक्त वो कंटेस्टेंट आजिम रियाज की नीस के लिए चॉकलेट्स भी लेकर आए थे और ये बात खुद आजिम के भाई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी की थी। सलमान की ही तरह रणबीर कपूर ने भी कई दफे अपने एडमायरर्स, खास करके फीमेल फैंस को अपने जेस्चर से कर दिया है इमोशनल। एक इवेंट में रणबीर ने अपनी एक फीमेल फैन को ना सिर्फ गले लगाया पर उनके साथ ऑन स्टेज डांस भी किया। The fan obviously got super emotional as she hugged Ranbir and would definitely cherish this moment for life. कुछ इसी अंदाज में अपने फीमेल फैन से रूबरू हुए थे एवर चार्मिंग कार्तिक आर्यन। उनके घर के बाहर ये फैन काफी लंबे अरसे तक उनका इंतजार कर रही थी और कार्तिक को देखते ही उन्होंने प्रपोज कर दिया। Overwhelmed by this gesture, कार्तिक ने अपनी फैन को ना सिर्फ संभाला पर उनके दोस्तों के साथ सेल्फीज भी क्लिक किए। बात जब तस्वीर क्लिक करने की हो तो जानवी कपूर का नाम जहन में आ ही जाता है। She's one star who always obliges paparazzi for photos. जब एक दफा वो अपने वर्कआउट सेशन से लौट रही थी तो उनकी एक छोटी फैन उनसे आकर लिपट गई and जानवी not only reciprocated the love but also agreed to click photos with her.
जानवी जी ओके थैंक यू Well, ऐसे कई किस्से हैं which are proof that some of our Bollywood stars are not only just successful but also grounded and humble as well. Well, folks, with that, we come to the end of another episode, another day, and another week of Planet Bollywood. But we will be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. This is me, Manish, signing out, and once again, wishing you all a very, very happy and safe Ganesh Chaturthi. I'll see you guys again very soon. Till then, take care and ciao.